Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter number 14, normal distribution is continued today, lecture number 14. And the third topic of the normal distribution is normal approximation to binomial in less than area situation. So students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic, normal approximation to binomial with the concept of the less than area situation. In the contents of this lecture, I will discuss the first point, normal approximation to binomial. In the second point, I will discuss area table under the standard normal curve. And the last point is my exercise question with the concept of the less than area situation. First of all, I will discuss the brief introduction about the normal approximation to binomial distribution. Normal approximation to binomial distribution. First of all, students, I will explain briefly binomial distribution. Binomial distribution is a discrete distribution and have two parameters n and p. N is the number of trials and p is the probability of success. And q plus p equal to 1 and q is the probability of failure. तो binomial distribution का mean जो है students आपके पास equal to np है और variance जो है वो npq है and standard deviation is root npq. And on the other hand, the normal distribution is a continuous distribution, and the normal approximation to binomial distribution, the normal distribution is limiting form of binomial distribution when number of trials n is very large and neither p the probability of success or q the probability of failure is very small, then the binomial distribution can be closely approximated by a normal distribution when n is very large and p is close to 1 by 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है और वो कह रहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p जो है अगर किसी भी इवेंट की वो आपके पास 1 by 2 के क्लोज है और n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज हैं तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मूव करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, यानी हम उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं. सो बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Even if n is small, neither p is not close to 0 or 1, the approximation is adequate. तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग जो है वो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं. तो टू मेक द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी पुट म्यू इक्वल टू np. और म्यू जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास जो है यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर मीन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन जो है इक्वल टू np, दोनों के अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, इक्वल रखेंगे. और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का npq है. तो इन दिस टॉपिक वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो उससे हम लोग हासिल करेंगे म्यू और सिग्मा की वैल्यूज को और देन फिर हम लोग जो है उसको यूटिलाइज करेंगे अपने जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. सिंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, we use the continuity correction by subtracting or adding 1 by 2 from x so as to make the discrete values continuous. तो discrete distribution से निकल के जब हम लोग जो है मूव करेंगे continuous distribution के अंदर यानी normal distribution के अंदर, तो हम अपने x वेरिएबल के अंदर जो है वो 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे to make the variable continuous. तो इन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे अपना जी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और देन हम लोग एरिया को फाइंड करेंगे. Before discussing the topic normal approximation to binomial, I will discuss the area table under the standard normal curve. In this table, students, we have the areas under the standard normal curve from 0 to z. z की किसी भी वैल्यू पे स्टूडेंट्स आप लोग एरिया को या प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to z. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो z की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है यूजिंग न्यू वेरिएबल z x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. और फॉर एग्जांपल आपने z की वैल्यू कोई भी जनरेट की है, फाइंड की है 1.28, मैंने एक वैल्यू चूज की है 1.28 z की और आपने इसको चेक करना है. फर्स्ट इसमें आपके पास गिवन है वर्टिकली z की वैल्यूज और हॉरिजॉन्टली भी आपके पास z की वैल्यूज गिवन है ऑन सेकंड डेसिमल प्लेस. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे अपनी z की वैल्यू को राउंड करना है और 1.2 जो है वो आपके पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस को आपने चेक करना है वर्टिकली z की लाइन में और यहाँ से आप फाइंड करेंगे 1.28 को और ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1.28 है और जो 8 इसके सेकंड डेसिमल प्लेस का नंबर है ये आपने चेक करना है हॉरिजॉन्टली और ये आपके पास गिवन है यहाँ पे 1.28 सेकंड लास्ट
कॉलम के अंदर। और यहाँ पे 1.28 में अगर आप चेक करेंगे विथ पैरेलल टू 1.2, और ये आपके पास एरिया जो जनरेट हो रहा है विच इज़ 0.3997, और ये आपके पास एरिया होगा स्टूडेंट्स 0 to Z 0.3997, 39.97%। इट मीन्स के आपके पास ये आपके पास 0.40% एरिया जो है वो कवर हो जाता है वैल्यू ऑफ Z 1.28। तो इन दिस वे आप लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे अपने नंबर को चेक करना है वर्टिकली, और हॉरिजेंटली आपने सेकंड नंबर को चेक करना है हॉरिजेंटली, और देन आपने फाइंड करना है एक पर्टिकुलर एरिया जो कि आपके पास गिवन होगा एरिया 0 to Z, और Z की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन आपके पास एरिया जो है वो पॉजिटिव ही होगा। और इस तरह से आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एरिया टेबल। कोई भी आपके पास एरिया या प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट Z के ऊपर। Now students, I will discuss the exercise question in less than area situation. In this exercise question, we have to find the probability that 200 tosses of a fair coin will result in first part में आपने find करना है area less than 90 heads, और in the second part we find the area or probability at most 90 heads। दोनों क्वेश्चंस दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे बस लेस देन एरिया सिचुएशंस के हैं, और आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 200 टॉसेस यानी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 200 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक इवेंट जो है उसको टॉस किया गया, एक कॉइन को टॉस किया गया 200 टाइम्स, और आपके पास यहाँ पे इवेंट जो है अकर हुआ है वो हेड्स है, और इस बात के क्या चांसेस हैं कि आपके पास लेस देन 90 हेड्स अपीयर हो और एट मोस्ट 90 हेड्स अपीयर। तो दिस इज द क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज द बाइनोमियल इंफॉर्मेशन, और इसको हम लोग यूज करेंगे और आपको सॉल्व करेंगे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के कॉन्सेप्ट से। 200 कॉइन्स को टॉस किया गया है इन दिस क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे इसको राइट करना है n नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज इक्वल टू 200 एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और आपके पास यहाँ पे सक्सेस जो है आपका इंटरेस्ट हेड्स में है, तो आपके पास एक सिंगल कॉइन के अंदर हेड के आने के चांसेस जो है वो 1/2 है, तो p इक्वल टू 1/2 हम लोग राइट करेंगे। और q प्लस p probability of success and probability of failure is always equal to 1, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1, तो Q का फार्मूला आपके पास यहाँ पे 1 माइनस P है, और 1 माइनस 1/2 आंसर इज 1/2, तो Q की वैल्यू आपके पास 1/2 होगी। देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो अप्रोक्सीमेट करेंगे, और म्यू आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, म्यू इक्वल टू NP राइट करेंगे, और NP जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। N और P की दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, N आपका 200 है और P आपके पास 1/2 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फाइनली जो है आपके पास मीन की वैल्यू म्यू की वैल्यू आपके पास 100 होगी। सिमिलरली आपने सिग्मा की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी है, और सिग्मा जो है बराबर है रूट NPQ, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को यूज करेंगे। एंड गिवन है हमें 200 को 200 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, n इक्वल टू 100, p 1/2 एंड q इज आल्सो 1/2। तीनों वैल्यूज को आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर रूट यूज करना है। देन हम लोग जो है उसका फाइनल आंसर फाइंड करेंगे सिग्मा का 7.07। देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड करेंगे z की वैल्यूज को। z का फॉर्मूला x प्लस माइनस 0.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम लोग कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मूव करेंगे तो अपने वेरिएबल x में जो है वो 0.5 जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे देन फिर हम लोग इसका z का आंसर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। First part of this question, we have to find the probability or area less than 98. It is also a less than area situation. Here we write symbolically as probability of x is less than 98, और इसमें हम लोग जो है अपनी x की वैल्यू जो है इसमें 0.5 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू लेस एरिया। जब भी आपके पास लेस देन सिचुएशन होगी, सिंपल लेस देन होगा, तो आपने अपने 0.59 x की वैल्यू 90 से 0.5 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है विच इज 89.5, और देन फिर हम लोग जो है z का फॉर्मूला राइट करेंगे, z इक्वल टू x माइनस 0.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और अपने x माइनस 0.5 की वैल्यू 89.5 पुट कर दे, म्यू और सिग्मा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस में गिवन है 100 एंड 7.07, और फाइनल आंसर z का जो है हमारे पास 1.49 है। देन स्टूडेंट्स मैं ड्रॉ करूंगा अपनी डायग्राम को। सबसे पहले आपने x की लाइन को ड्रॉ करना है x एक्सिस के ऊपर, और देन फिर अपने
नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करेंगे इन सिमेट्रिकल शेप के अंदर, तो ये आपने बेल शेप में जो है वो नॉर्मल का कर्व ड्रॉ कर दिया। देन स्टूडेंट्स मैं अपना मीन जो है इसको राइट करूंगा और डॉटेड लाइन से यहाँ पे मैंने मीन की लाइन जो है बिल्कुल मिडल में ड्रॉ कर दी है, विच इज़ 100। ये आपके पास 100 आ गई है। देन अपना एरिया जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। एरिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले आपने टोटल एरिया को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, तो 50% एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द मीन होगा और 50% एरिया जो है वो आपका टू द राइट ऑफ द मीन होगा। तो 0.5 दोनों साइड से इक्वली डिस्पर्स होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने x की पॉइंट जो है उसकी लाइन जो है उसको लगाना है। तो x की पॉइंट को लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं इसको लेफ्ट साइड पर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू 89.5 जो है वो मीन से जो है वो स्मॉलेस्ट है, मीन से लेस है, तो वो आपके पास लेफ्ट साइड पे होगी। और देन स्टूडेंट्स आपने इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो एक z की लाइन ड्रॉ करनी है, और z आल्सो फॉलोज नॉर्मल कर्व, और z का मीन जो है विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और देन स्टूडेंट्स आपने z की जो वैल्यू है -1.49 इसको प्लॉट करेंगे पैरेलल टू 89.5, बिल्कुल उसके पैरेलल, और ये -1.49। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स एरिया टेबल में जाना है, और एरिया टेबल में आपने वहाँ से एरिया फाइंड करना है। 1.4 को 9 में जो है वो आप लोगों ने देखना है। 1.4 को आप लेफ्ट साइड पे वर्टिकली और 9 से आपने ऊपर टॉप पे हॉरिजॉन्टली उसको एरिया को चेक करना है, और आपके पास 0 टू z एरिया जो है वो -0.4319 जो है एरिया, ये आपको एरिया 0 टू z मिल जाएगा फ्रॉम एरिया टेबल। और देन फिर आपने शेडेड एरिया जो है जो हमने फाइंड करना है विच इज़ लेस देन 89.5, ये आपके पास लेस एरिया है जो हमने अपना रिक्वायर्ड एरिया जो है अपने क्वेश्चन में इसको फाइंड करना है लेस देन 90 हेड्स के लिए। और उसके बाद आपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50% एरिया आपका लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, और 0 से 1.49 का एरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0.4319 है। तो इसको मैं राइट करूँगा सिम्बॉलिकली, probability of x is less than 89.5 equal to probability of z is less than 1.49, और z की फॉर्म में इसको राइट करेंगे। फर्स्ट से पहले ना जो 50% एरिया बिगेस्ट एरिया है उसको मैं राइट करूंगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, और माइनस कर देंगे आपने जो एरिया जो आपको यहाँ पे हमने 0 टू 0 एरिया फाइंड किया है, इसको मैं निकाल दूंगा, तो शेडेड एरिया मेरे पास जो है रिक्वायर्ड एरिया जो है फाइंड हो जाएगा। तो नेगेटिव 1.49 से लेके आपने 0 तक का एरिया जो है इसको आपने माइनस कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 0.4319, ये एरिया 0.5 में से आपने इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आपके पास 0.0681 है। तो इट मीन्स डैट कि आपके पास 6% चांसेस हैं कि आपके पास इस 200 टॉसेस में से 90 लेस देन 90 पे जो हेड्स है, हेड्स आने के चांसेस जो हैं वो आपके पास 6% है। तो इस तरह से आपने लेस देन एरिया सिचुएशन में रहते हुए आपने फाइंड करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो लेस देन एरिया जो है फाइंड किया जा सकता है। Second point, I will find the probability at most 90 hertz. It is also a less than area situation. Here we write symbolically as probability of x is less than or equal to 90. At most means कि आपके पास यहाँ पे इक्वलिटी का साइन जो है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेस देन सिचुएशन के अंदर, तो लेस और इक्वल 90 हेड्स। इट मीन्स दैट कि जब भी आपके पास लेस और इक्वल होगा तो आपने 0.5 जो है वो ऐड करना है अपनी x की वैल्यू के अंदर। तो 90 में मैं 0.5 ऐड कर दूंगा, 90.5 ड्यू टू कंटिन्यूटी करेक्शन, और x z का फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस 0.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 9x में वैल्यू ऐड कर दी है 0.5, 90.5 माइनस 100 ओवर 7.07 विच इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, और ये आपके पास यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो -1.34 हमने कैलकुलेट की है। और देन स्टूडेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे अपनी डायग्राम को। फर्स्ट आपने स्टूडेंट्स अपनी x की लाइन को ड्रॉ करना है, और उसके पहले आपने अपने एक नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करना है, और इन अ सिमेट्रिकल शेप, और सिमेट्रिकल शेप के अंदर जो है इसको ड्रॉ कर लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x। देन स्टूडेंट्स अपना मीन हम राइट करेंगे, और मीन बिल्कुल मिडल में है विच इज 100, और देन आपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 50% एरिया लेफ्ट ऑफ द मीन है, और 50% एरिया जो है सिमिलरली राइट ऑफ द मीन है। ये आपने ड्रॉ कर दिया दोनों साइड पे अपने मीन्स एरियाज को, और देन आपने अपने जो x की वैल्यू है इसको हम लोग राइट करेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास 90.5 है जो कि आपके पास 100 से लेस है, तो ये लेफ्ट साइड पे राइट की जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक
लाइन ड्रॉ करनी है लेस 90.5, और आपका शेडेड एरिया जो आपने फाइंड करना है एरिया आपने लेस देन एट मोस्ट 90 मीन्स के आपने लेस देन एरिया फाइंड करना है। तो ये 90 से कम जो एरिया है ये सारा आपने इसको फाइंड करना है यहाँ पर। और देन हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे अपनी जी की लाइन को। तो पैरेलल टू एक्स आपने जी की लाइन जो है इसको ड्रॉ करना है, और इसका मीन जो है वो 0, और इस 90.5 के अगेंस्ट हमने वैल्यू यूज़ की है जी की -1.34, इसको यूज़ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे। और देन स्टूडेंट्स आपने एरिया टेबल में जाना है अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के, और वहाँ पे आपने एरिया फाइंड करना है 1.3 को 4 में चेक करेंगे 0.4019। तो ये एरिया जो है स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 0 टू जी एरिया होगा। 0 टू जी एरिया मीन्स के जी की वैल्यू 1.34 तक का एरिया है, और ये आपके पास एक स्मॉलेस्ट एरिया है 0.4099। देन स्टूडेंट्स हम लोग इसको सिंबॉलिकली राइट करेंगे। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 90.5 हर्ट्ज, इसको जी में ट्रांसफॉर्म किया है तो जी लेस देन -1.34, और बिगेस्ट एरिया आपका -0.5 से लेके 0 तक का एरिया है, इसको आपने राइट करना है -infinity लेस देन लेस और इक्वल जी लेस और इक्वल 0। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी और एरिया 0.50 है 50%। और आपके पास जो अभी मैंने फाइंड किया है 0 टू जी एरिया, इसको राइट करेंगे और इसको हम माइनस कर देंगे, देन हम लोग जो है वो शेडेड एरिया जो है इसको फाइंड कर लेंगे। तो -1.34 से लेके 0 तक का एरिया विच इज 0.4099 राइट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और देन आपके पास जो फाइनल आंसर होगा 0.0901, 0.0901। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जिसमें आप लोग फाइंड कर लेंगे इस बात के चांसेस कि आपके पास अपीयर हो एट मोस्ट 90 हेड्स। In this lecture, students, I have been discussed normal approximation to binomial distribution, और इसमें हमने binomial distribution का briefly explain किया, और then हमने approximate किया binomial distribution से, और then हम लोगों ने अपना simple area find किया। तो binomial distribution की information को use करेंगे और उसमें z distribution में इसको convert करके then हम लोग अपने कोई भी किसी भी point पे area जो है वो find कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।